Good evening, friends, and welcome to the book launch of Dil Ulfat or Izhar by none other than Vipul Kulshrestha. विपुल का इंट्रोडक्शन जब मैंने उनसे मांगा था तब इन्होंने कुछ पंक्तियां मेरे सामने रख दी और कहा बस यही दोहरा देना, बस दिस इज व्हाट आई एम फुल ऑफ। वो पंक्तियां इस कदर हैं, ना ये कविता है, ना रुबाई है, ना गीत है, ना गजल है, ये किसी आशिक के दिल से खिलते हुए कवल है। So to reveal it all, let me first of all invite Vipul. Please come with us. The brilliant and versatile creator of this captivating romantic book. Vipul decided to write hard as nails to showcase strong female characters who decide to live life on their own terms. He hopes this book empowers and inspires readers, especially girls, to think, if she can, then I can too. Vipul, it's an honor and it's a pleasure to share this platform with you. It's an honor and pleasure to share this platform with you too. In fact, before we proceed, let me introduce this lady here. And, her name is Harry Paveen, which is normally famous as Harry Paveen. Paveen is my husband's name. Actually, her name is Harvinder Anand. And she is a mini celebrity. She's a social media celebrity. So I am so honored that she is going to moderate this, particular interview. Thank you so much. It's my pleasure. It's an honor to be with you. Absolutely. Friends, we have a very amazing, dynamic, chief guest today. And without further ado, let me just introduce you to her. She's an anchor, she's an actor, she's also a radio jockey. She has done several TV shows like Dhadkan Zindagi Ki, Sapnon Ki Chhalang, Savi Ki Savari, MTV Drive with Nano Mumbai. Please put your hands together for dynamic and more versatile, talented lady present here, Devangana Chauhan. Yeah! Please, Devangana. Thank you. It's really an honor and pleasure to be here, and I was not aware कि ऐसा कुछ special होने वाला है, because I feel everyone present here is a special person right here in the house. But I am so excited. I tell you what, few days back, Vipul sir came to my studio, and सबसे पहले तो इनसे सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरे की पूरा जो ऑफिस है बहुत इंस्पायर हुआ था, because for him age is just a number. And you know what, मैंने विपुल सर से जब पूछा कि ये आपकी लाइफ में राइटिंग का खूबसूरत हादसा कैसे हुआ, so he said कि दिवांगना, मैं अपनी बेटी के लिए ना पोएम ढूंढने गया था उस टाइम पर, मार्केट में कुछ इस तरीके की अलग से किताबें नहीं थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी पोएम है जिसका नाम था चिड़िया रानी। करेक्ट। उन्होंने वो लिखी, एंड तब से इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग फॉर हिम। प्लस ही इज सच एन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज he is living life king size, right? Absolutely. I mean, जो इनका passion था, जो इनका we say it avocation and vocation का जो combination इन्होंने अपनी लाइफ में रखा है, पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर रह चुके हैं, लेकिन आज भी रोज सुबह जब उठते हैं तो उठकर एक लाइफ में ऐसा होता है ना कि उठ के let's do this, वैसा वाला attitude. So kudos to Vipul sir and hats off for this new chapter of your life. So everybody, let's give a huge round of applause. लेकिन दिवांगना, तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, एक शायर के तुम फंक्शन में आई हो। जी बिल्कुल। रुका सुखा सा एक इनका इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए। तो मैं 4 लाइन, तुम कहेंगे मेरे ऊपर कुछ आपने लिखा है। Yes. तो 4 लाइनें हो जाए कि सांस रुक जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है। सांस रुक जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, जब ये अपने माइक के सामने धीरे धीरे चहचहाती है। अरे दो लाइनें और हैं। सांस रुक जाती है, धड़कनें बढ़ जाती है, जब ये अपने माइक के सामने चहचहाती है, तरंगों के ऊपर सवार होके मन में घर कर जाती है। तरंगों के ऊपर सवार होकर मन में घर कर जाती है। आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है
जब ये बत्ती आती है। क्या बात है। So much, sir. That is so beautiful. Yeah, actually very beautiful. Thank you. This is a very beautiful surprise sitting with us today. So, विपुल, सबसे पहले तो ये बताइए 60 साल की उम्र में लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में किताबें लिखते हैं और फाइंडिंग यू नो द पर्पस इन लाइफ, यूनिवर्स से पूछते हैं मैं क्या करूं। आप ये दिल उल्फत इजहार के बारे में कैसे, ये दिल उल्फत इजहार ऐसे कैसे आ गया है अभी अचानक आफ्टर राइटिंग 3 बुक्स? देखिए, लोग कहते हैं कि भाई 60 साल की उम्र में यू शुड बी गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, है ना? वेरी ट्रू। सब कहते हैं कि आध्यात्म की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं देते? तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में और आध्यात्म में फर्क क्या है? हाँ? और हर कल्चर में जो पाक साफ मोहब्बत है उसकी तुलना बंदगी से, इबादत से की गई है। आप देखते हैं हर कल्चर में, अगर आप अरेबिक साइड में देख लें तो वहाँ लैला मजनू की कहानी है, अगर आप ब्रिटेन में देख लें तो रोमियो जूलियट की कहानी है, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो सोनी महिबाल है, हीर रांझा है, और तो और शकुंतला है। और ये कहानियां कितने साल हो गए जब लिखी गई होंगी या हुई होंगी, सालों साल हो गए, कई 100 साल हो गए, पर आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें देखते हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, और जब देखते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मानती है, और सारी दुनिया ने माना है कि मोहब्बत जो है ये इसका रिश्ता, ये एक रूहानी जज्बा है, रूहानी जज्बा, इसका रिश्ता जो है आत्मा से है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? और स्पिरिचुअलिटी आत्मा से। तो एक एक्चुअली आप नहीं पैदा हुई थी, इनफैक्ट जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं भी नहीं पैदा हुआ था। फिर ठीक है। 1959 की फिल्म थी एक बरसात की रात, जिसमें एक 10 मिनट की कव्वाली थी, जिसको के मैं कहता हूँ शायरी के जादूगर साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा। वो कहानी का शीर्षक ही था, कहानी थी ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। उसका एक स्टेंजा है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, ये कायनात इश्क है और जान इश्क है, इश्क मूसा इश्क ही मंसूर है, इश्क काबा इश्क कोहे तूर है, इंसान को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। और ये जो यंगस्टर यहाँ पे बैठे हैं उनको मैं बता दूं कि उसके म्यूजिक डायरेक्टर जो थे रोशन साहब थे, जो ऋतिक रोशन के दादा हैं। और इनफैक्ट जो रोशन अभी नेटफ्लिक्स पे आई हुई है उसमें उन्होंने इस कव्वाली के बारे में, आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कव्वाली, उन्होंने इस पर्टिकुलर कव्वाली के बारे में लिखा है, यू नो हाउ दिस वाज originated and it came. And Vipul, we would also like to know, apart from your writing, about your you know career, what is Vipul actually? Vipul की hobbies क्या हैं? Vipul as a trinity fully में as a whole. विपुल क्या है? कौन बता पाएगा विपुल क्या है? आप आपकी तारीफ? मैं Vivek Kher. We were working with him in the R&D. Oh. So he's a multicultural person. जो गाना भी बहुत अच्छा गाता है, very lively person, party man, pure party man है. He's a पार्टी की जो जान कहलाता है वैसा आदमी है। ये जो है ये कला उसकी जो कविता लिखने की या स्टोरी राइटिंग का ये उसका रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ, क्योंकि रिटायरमेंट जब वो काम कर रहा था एरिया में हम लोग उसको फुर्सत नहीं देते थे। बट यस सर, बिकॉज सर ने अभी बताया भी था थोड़े दिन पहले कि ऑफिस में भी एक कभी इस तरीके का राइटिंग कंपटीशन हुआ था। आई गेस दैट वाज आल्सो द टाइम जब आप जीते थे व्हाइल वर्किंग। एट दैट टाइम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज खेर साहब, और वो मेरा जो सर्टिफिकेट आया था उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। हम लोगों ने सबॉर्डिनेट भी आते जाते कहते साहब आप कविता कवि हो। नहीं, मैं अपने आप को ऐसा आंकता हूँ कि मैं एक मस्त मौला इंसान हूँ। ओके, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, है ना? एंड
प्लीज आस्क मतलब किसी काहू काहू से ना, काहू से दोस्ती ना काहू से प्यार। और जहाँ तक शौक का सवाल है, लिख तो मैं रहा ही हूँ और पढ़ने का मुझे बेहद शौक है और टेढ़ा मेढ़ा गाना भी गा लेता हूँ। तेरा मेरे को तो अभी पता चल जाएगा दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं बिकॉज रेडियो से हूँ तो रेडियो के अंदाज में ही इनके गाने को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हाँ, ठीक है ना? So let's do that. 104.8 Ish FM, but this is your धमाकेदार दीवानगी की company right here with the Vipul sir in the house. Everybody, can we have a huge round of ऐसा होता है जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ बैठी होती हैं और आज इनका गाना सुनने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। So on the count of 3 to 1, can we hear that one? Right? And then she will join you, okay? I like promise. to do that. I'm a bathroom bedroom type of singer. Yeah? That's the one. मैं मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा है। Really? Wow. यस तो सारे जवान सुन लें कि बीट आपको देनी है। बीट आप कैसे देंगे? तालियों से। और ताली कैसे बजाएंगे? ढाक 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 ढाक। ओके, ढाक 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 ढाक। हाँ, ओके। और मैं चाहे खामोश भी हो जाऊं, ये बीट चलती रहनी चाहिए। ढाक 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 ढाक। हाँ। Before we start, I'll introduce Ishika. Oh, sure. Friends, we have Ishika अमरनानी, जो खुद ही एक बहुत ही खूबसूरत लेखिका है। इन्होंने भी अपनी किताब लिखी हुई है, खुद सा इश्क। Okay, and she is also a beautiful singer. Very, you know, तो ये और एक हमारे साथ addition चाहिए लगता है। So Ishika, welcome. Thank you for spending time. इशिका से मेरी बात हुई और एक शेर की 2 लाइनें मुझे याद आ गई जो बिल्कुल बिल्कुल सही उतरती हैं। जो है कि बढ़ने नहीं दिए कभी किस्मत के हौसले, बढ़ने नहीं दिए कभी किस्मत के हौसले, जब भी चोट खाई हम मुस्कुराए। यानी a survivor and hats off to her. her journey has been now. जितना शारीरिक कष्ट सहने के बाद में she has got up and सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वभाव की मधुरता होती है और जो सरलता होती है, जो दिल की कोमलता होती है, उसके ऊपर इन्होंने किसी भी परेशानी से आंच नहीं आने दी। और उसके बाद में इन्होंने एक खूबसूरत प्रेम कविता की किताब लिखी, प्रेम कविता की किताब लिखी और हाँ, खुद सा इश्क। और अब ये वो कविता को जगह जगह पढ़ के सुनाती हैं और परफॉर्म करती हैं। And I have seen some of her videos and she is amazing, absolutely amazing. और इनकी आवाज भी बहुत देवांगना, इनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है। It's such a pleasure having you here. Yeah. चलो। Okay, तो 2 मधुर आवाजें। हाँ। पीछे We are also there, दिवांगना। We will also be the chorus. अच्छा, तो हाँ, please. ताली के बीट बोले। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा तो आप लोग उसी के साथ साथ सिंग करिएगा। सिंग करेंगे। हाँ, कोशिश। ओके। तो देखिए ऐसा है कि हमारे जमाने के जो गायक थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे और उसके बाद बप्पी लेरी और उसके बाद में आर डी बर्मन, पंचम दा, ये आइकॉन्स थे। इनके ही गाने चलते थे हर जगह इन्हीं के गाने सब जगह सुनाई देते। तो मैं एक मेडली गाऊंगा, प्लीज। सुपर। ओके, इनके गानों में। और जहाँ मेरी आवाज, आप बहुत अच्छा गाते हैं दोनों, जहाँ मेरी आवाज फेल करेगी जरा आप सपोर्ट दे देना, अपनी आवाज मिला। तो शुरू करें? Yes, Definitely, yes. आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, आया हूँ जो दिखला। कहो प्यार है मुझसे, जा कहो प्यार है मुझसे,
तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ देने नजराना मैं अपने राज को लाया हूँ एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मेरी एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है एक लड़की भीगी भागी सी मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी उनके जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है उनके जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है A line poster, right? अरे कैसा सीधा साधा कैसा भोला भाला जाने कौन दुनी में परिया बड़े लिखों से पाला मीठी चूड़ी से हुआ हरा छुरा गंगा किनारे छुरा गंगा किनारे एकदम पूरा For typical UP right. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं. I hope you all are enjoying this. देख लीजिए लाइव सेशंस. इशिका भी हमारे लिए कुछ गाएंगी, but after a break. देवांगी ने भी ऐसे माहौल बनाए आप गा ही दो. गा ही दीजिए. गा ही दीजिए. अब गा I'm there with you, baby. We all are there. Yeah, you're there. She's also there. ऐसा गाना जो हमें लिरिक्स पता हो. ज़्यादातर अभंग और भजन गाती हूँ बट माहौल नहीं है so क्या बनके कली बनके वफा वादे वफा Beautiful. So विपुल सर मतलब इसमें ऑलमोस्ट इस किताब में 140 पोएम्स हैं, राइट? तो मैंने सर से पूछा था कि हर एक लाइफ में आप कुछ भी काम करते हो तो कहीं ना कहीं से चीजें इंस्पायर्ड होती हैं, राइट? तो आपका इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में इसको लिखने के लिए मतलब एक साल में 140 जो पोएम्स लिख डाली है, कौन थी वो इंस्पिरेशन? थी बोला है, देखो गौर से सुनो. Let's do that. Yeah, let's hear it out. ठीक है. इसे जवाब एक तो 4 लाइनों से दूंगा कि गुलशन आबाद होता है तो खुशबुएं छाई जाती है. गुलशन आबाद होता है तो खुशबुएं छाई जाती है. मझधार में हो नैया किनारा पाई जाती है. किनारे मझधार में हो नैया किनारा पाई जाती है. और लफ्ज तो वही हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते हैं. लेकिन जब दिल मोहब्बत से लबरेज हो तो शायरी आ ही जाती है. अरे वाह. ये कहना चाहते हैं गुलशन है क्या बात है? हाँ ये अपना लबरेज जरूर है. So कौन थी आपकी माशुका जी? अरे इसके ऊपर मुझे 4 लाइन फिर बोलनी पड़ेगी. जी डेफिनेटली 4 लाइनें इसके ऊपर मैं बोलूंगा क्यों. वो रह के मेरी बातों में मेरे दिलबर के बारे में बयान ढूंढते हैं. वो रह के मेरी बातों में मेरे दिलबर का बयान ढूंढते हैं. दिल के पार हो चुका, खूने जिगर से किताब भर गई और ये कमबख्त कमांड ढूंढते.
जी, जी। सुनील जी, so can you tell us how about Hard as Nails books के बारे में भी कुछ? See, one is already published and out. It was a book of short stories. My first book was an English book. The name was Missed Connections. It had 8 short stories, and each story named after a woman protagonist. So that was And, visionary or that was real No, it was imaginary. imaginary? And each female protagonist was of a different age group. यानी स्कूल गोइंग गर्ल से, प्रोफेशनल से और मिडिल एजेड से रिटायर्ड, द एंटायर एज ग्रुप. एंड ईच story was a love story. लेकिन it was a slice of kind of love story in the sense कि normally when somebody writes a love story, so there's a boy, there's a girl, boy meets girl, then there are obstacles and finally at the end. But that doesn't usually happen in life. In life, many a times, concurrently, sometimes separately, several love stories take place. You know, boy comes in contact with girl. Situations or circumstances take a turn. Boy and girl separate. Not necessarily with bitterness or sorrow. Mutual. Yeah. It just, this is like, suppose, you must have, everybody experiences there's puppy love in school, there's a crush. Okay. That doesn't culminate into anything. Maybe later on, again, by chance. But otherwise, they go separate ways. But all these encounters leave in your mind bittersweet memories that you can recall. Missed And connections is so, the missed part. connections is. Yeah. So amazing. विपुल जी, आपने एक कविता लिखी थी जो इंडो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर, जी, जी। for which you have also received a lot of accolades. So उसके बारे में बताइए और हम चाहेंगे वो कविता आप यहाँ दर्शकों को भी सुनाएं. थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, माहौल चलेगा. ये एक्चुअली टर्निंग पॉइंट कविता है. तो वो कविता जो थी वो इस तरह से थी कि कविता का शीर्षक था इल्तिजा. इल्तिजा इज रिक्वेस्ट. I will not explain it. मैं कविता पढ़ता हूँ, बहुत आसान सी है, and you will automatically get the sense कि एक बेल की दो लताएं क्यों एक दूसरे को सताए. एक ही रूप है, एक ही रंग है, फिर भी एक दूसरे से तंग है. एक पहनावा, एक ही बोली, खेलते रहे खून की होली. किसने बीच घड़ा के बोए, अलग अलग कांटों पर सोए. मौत का तांडव खूब मचाया, चारों ओर हाहाकार मचाया. जाने उजली कितनी मांगे, कितनी माओं ने अपना लाल गवाया. कौन है वो व्यापारी, कौन सा है वो बाजार, होता रहता जहां पर हरदम लाशों का व्यापार. इतना भी खून मत बहाओ कि दुल्हने सुर्ख जोड़ा पहनना छोड़ दे. इतनी भी आग मत लगाओ कि लोग चिरागों से नाता तोड़ दे. अभी भी वक्त है सब कुछ बुलाकर प्यार तो कर ही सकते हैं. भाई बने तो बहुत मुनासिब, यार तो बन ही सकते हैं. जब दिल से दिल, हाथ से हाथ, चाह से चाह मिलेगी. जब दिल से दिल, हाथ से हाथ, चाह से चाह मिलेगी. अमन चैन की जाने कितनी भूली राह खुलेगी. अमन चैन की जाने कितनी भूली राह. Okay guys, दिल, उल्फत और इजहार. The best one. So I'll tell you one more beautiful thing about this book is that it is in a very layman language. क्योंकि जनरली हम लोग जब कविताएं पढ़ते हैं या किसी तरीके की किताबें पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि गूगल पे जाके देखना पड़ता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है. बहुत हेवी वर्ड्स होते हैं. बट दिस बुक एंड प्लस विपुल सर की राइटिंग में दिस इज वन ऑफ द ब्यूटी कि बहुत ही सिंपल एंड लेमैन लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें उन्होंने अभी तक लिखी हैं, इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो आई जस्ट रीड आउट फ्यू लाइन्स फ्रॉम दिस. एक चिड़िया आई, आंखें मटकाई, कंधे पर चढ़कर वह बोली, तेरी महबूबा बड़ी भोली. खुश हो या नाराज हो नहीं छुपा पाती है, खुश होती है तो मेरी तरह चहचहाती है, नाराज हो तो पेलिकन की तरह गाल फुलकाती है,
छोटी सी चीज काफी है उसके हंसने के लिए, छोटी सी चीज काफी है उसके हंसने के लिए, उससे भी छोटी चीज काफी है आंसू बरसाने के लिए। जिद पूरी कर दो तो आंखें उसकी चमकती हैं, जिद पूरी कर दो तो आंखें उसकी चमकती है, जब वह यहाँ वहां फुदकती है ट्वीटी जैसी लगती है। जल्दी रूठती है तो जल्दी मान भी जाती है, आवेश में हंसनी की तरह अकड़ कर तन भी जाती है। बिछों की पीड़ा में मोरनी सी आवाज लगती है, मिलन के सुख में तुम्हारी चोंच से चोंच लड़ाती है। तुम ठहरे अंधे से उल्लू और वह सोन चिड़िया है, तुम ठहरे अंधे से उल्लू और वो सोन चिड़िया है, पर तुम दोनों का तालमेल अच्छा ही नहीं बढ़िया है। So this is the beautiful poem that he has written. And सर ने इसका मीनिंग भी बताया था, तो आप थोड़ा सा इसको कहाँ से किधर, तो सर ने मुझे बताया था कि जब भी सामने कुछ देखते हैं ना उसी के ऊपर कविता लिखते हैं। वाओ, तो ऐसे हमारे ही पर लिख दी। ऐसा ही कुछ इसके टाइम पर भी हुआ था, राइट? Beautifully she narrated, guys. Please. एक दिन का फासला दरमिया है मगर, एक दिन का फासला दरमिया है मगर, लगता है मुद्दतों के बाद मुलाकात होगी। ये रात और बात का दिन इंतजार की कयामत बरपा रहा है, उसके बाद ही लगता है मेरी बाहों में मेरी कायनात होगी। क्या वक्त बेरहम कटता नहीं, वक्त बेरहम है कटता नहीं, हर जाए की आंखों से तेरा चेहरा हटता नहीं। मौसम का सितम है कि घटता नहीं, जहन पर छाया और अंधेरा छुपता नहीं। लफ्ज़ हलक में ही कैद रह जाते हैं, लफ्ज़ हलक में ही कैद रह जाते हैं, स्वर निकलेंगे जब तुमसे फिर बात होगी। हालात का सितम सब्र की हदें याद दिलाना है, कल तेरे नजरे करम से ही लज्जते हयात हो। क्या Very well read. बहुत प्यारा लिखा है। इतनी खूबसूरत है कि वो कविताओं को चार I चांद was लगे। totally into it. Deep dive. कलाकार है यार। एक कविता मैं पढ़ के सुन रहा हूँ, मेरी पसंदीदा, इसी में से, इसी किताब में से। तुम्हारी खातिर तमन्नाओं की महफिल सजाई है मैंने, तुम्हारी खातिर तमन्नाओं की महफिल सजाई है मैंने, रंज और गम को नहीं बुलाया है, रंज और गम को नहीं बुलाया है। ख्वाब, अरमान और हसरतें मौजूद होंगे वहाँ, ख्वाब, अरमान और हसरतें मौजूद होंगे वहाँ। खुशी और इत्मीनान को भी पैगाम भिजवाया है, खुशी और इत्मीनान को भी पैगाम भिजवाया है। तुम उस महफिल की मलिका होगी, तुम उस महफिल की मलिका होगी, तुम्हारे ताज की कलगी में अपना दिल पैबस्त करवाया है, तुम्हारे ताज की कलगी में अपना दिल पैबस्त करवाया है। तुम्हारी राह में मेरी पलकें बिछी होंगी वहाँ, तुम्हारी राह में मेरी पलकें बिछी होंगी वहाँ। तुम्हारे तख्त पर अपनी उम्मीदों को मढ़वाया है, तुम्हारे तख्त पर अपनी उम्मीदों को मढ़वाया है। तुम्हारी हर मुस्कान पर मेरे खूने दिल की बौछार होगी, तुम्हारी हर मुस्कान पर मेरे खूने दिल की बौछार होगी। और रूमानी फूलों को भी मंगवाया है, और रूमानी फूलों को भी मंगवाया है। साथ साथ जन्नत न भी नसीब हो हमें, साथ साथ जन्नत न भी नसीब हो हमें। महफिल में एक दूजे में समाकर लगेगा जन्नत को हमने पाया है, जन्नत को हमने पाया है। So friends, this brings us to the end of this beautiful evening. I would like to thank our chief guest Devandana. Thank you so much for coming. All my pleasure. Thank you so much for having me. आपने चार चांद लगा दिए हमारे सर ये वो हमारे सबसे बड़े चांद तो यहाँ पर हैं। स्पेशल थैंक्स टू इशिका जो खुद एक लेखिका है, उनकी किताब कुछ सा इश्क जो उन्होंने, you can find her on YouTube. Devandana, you should Definitely, check it out. And thank you, Ishika, for taking out time and coming all the way from. It's an honor. I would also like to thank Mommy June Cafe
and the most important book nerd who has curated this event, Neha. Thank you so much, and my amazing audience. God bless you all. Thank you so much. इतना आसानी से नहीं, अमेजिंग ऑडियंस इतने आसानी से नहीं। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली। थैंक यू अर्चना, थैंक यू करण, थैंक यू अम्मी, थैंक यू ज्योति, थैंक यू दीपक, थैंक यू नेहा। ओके, इट वाज सच अ प्लेजर। खासतौर पे दीपक नेहा तो जैसे बिना मांगे मुराद मिल गई। Blessing. And thank you Tantraji and Kher, my pillar of support all the time, my support system. And thank you the youngsters. और मौके पे राहत इंदौरी साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं। Yeah, दो नहीं चार। दो लाइनें। We are still packed up. Yes. राहत इंदौरी साहब नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसने दरवाजा खटखटाया, किसने दरवाजा खटखटाया, कौन है, किसने दरवाजा खटखटाया, कौन है, आप सब तो दिल के अंदर हैं, बाहर कौन है? मैं बिल्कुल नहीं आता मुझे। मैं ऊपर ही क्लोजिंग कर सकती हूँ, मैं रेडी वाली हूँ। चलो एक गाना है अपना दिल तो आप पेपर टॉप and Wow. he himself is an amazing personality, a big celebrity. इशिका से मिलिए, ये हमारी बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। It's a big thing if ये जनाब आए हैं हमारे इधर, विपुल जी से मिलिए, प्लीज कम। जी congratulations. So sorry I was late. At least late, but नहीं आपका मैसेज था ना, obviously I had to come. Congratulations. thank you, thank you, thank you. Devang And this is Devang राहुल, Nice to meet you. नाम तो सुना होगा। Join us for the song. नहीं नहीं 3, 4. अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीना ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, दुनिया समझा, बहुत मोया है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। मेरा नाम नीलम गेहानी है और विपुल जी और हम फैमिली के जैसे ही हैं और आपस में कभी ऐसे शेयर करते रहते हैं, कभी कोई भी करंट अफेयर्स हो, इमोशंस हो, कुछ भी। आ, और इनके पहले भी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं और जैसा पर्सनैलिटी है विपुल जी की, जैसी पर्सनैलिटी वो रिफ्लेक्ट होती है। और मुझे लगता है जो भी कलाकार होता है, लेखक होता है, उसकी छवि जब वो दुख कार्य करता है वहाँ पर कहीं न कहीं वो नज़र आती है। और पहले भी बुक्स मैंने बहुत एन्जॉय की है। मैं तो यही चाहूँगी कि विपुल जी आगे बढ़ें और बस बढ़ते ही चले जाएँ। नमस्कार। Hi, तो विपुल जी को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ। I have been reading some of his books. I have really liked his earlier publication, Misconnection. और आज हम इस बुक के लॉन्च के लिए आए हैं, हम एक्साइटेड। आई एम श्योर हमेशा की तरह वो वापस एक नई कोई मस्ती वाली और रोमांटिक सब्जेक्ट पे वो लिखते हैं। तो ये poems I'm excited to read. Wishing Vipul all the very best. I've read the earlier book, Meri Rachna Dil Se, superb book, and really looking forward to reading this new one of his. Thank you.